do any discussion. We'll take suggestions from you and start performing. And we'll see how it goes. We'll come to you and ask questions. Pretty much similar to the questions I've been asking. What do you do? He's a writer. He has come from Tango. That kind of things we would ask you. So just to practice, can we say at the count of 3 where you have come from? 1, 2, 3, and you have to say you have come from which particular place, huh? 1, 2, 3. Okay. Now try it. Who has come from the furthest distance? ठीक है? 1, 2, 3. अभी तक थाने मेरे को सुनाई दे रहा है. Anyone can beat थाने? Panvel is better. Panvel is better. Panvel is further, not better necessarily. Right? So we are going to do something on the spot, and we'll start the murder mystery in 10 minutes. Before that, what we are going to do is first let's warm you up, and then we'll warm ourselves up, and then we will start. So to warm up, एक बार एक वो कर लेते हैं. बहुत ही ट्रेडिशनल इम्प्रो कॉमेडी मुंबई का स्टार्टिंग थिंग है, रबर चिकन. ओके, उसके लिए क्या करना है? आपको सबको खड़े हो जाना है और अपना राइट हैंड ऊपर करना है. अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब. उसके बाद काउंट ऑफ 8 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 ऐसे 8. फिर 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. And then we'll all shout together something. क्या? What will we shout? पनवेल. बहुत बढ़िया. ठीक है? And count भी करना है जोर से, एकदम जोर से करना है, पूरे enthusiasm के साथ. Give us the energy, guys. All right? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Panvel! A lot of people have told us that this is the best part of the show. Not really. So let me call on stage our cast for tonight. We have Mukul Chadda, Ankit Challa, and the one and only, and Yogesh Upadhyay. So for a warm up, we are going to just play 2 games. These are just for us to warm up, to kind of take out the excess energy. We'll play Fortunately and Unfortunately. Okay. Why are you laughing? समझाएंगे? हाँ, समझा दूंगा. So we're going to play a simple game. It's as it's called Fortunately, Unfortunately. It's going to be 1 line of dialogue. So say I'll take a opening line of a story dialogue from you all, and then follow it up with, I will say, Fortunately, so that precedes the sentence, so you know that it's going in a positive direction. Fortunately, the next line of dialogue. My fellow improviser after me will have to continue the story. The next line of dialogue has to start with Unfortunately. Then the next line of dialogue with Fortunately. Then Unfortunately, Fortunately, etc. Now this we can go on all night, and you know you'll probably have to go home at some point. So if we make a mistake, like for example, if we fumble, we stumble, we take time before we start our sentence, or it doesn't make logical sense. Like you're saying fortunately, but actually what we're saying is something terribly unfortunate or whatever. You guys get to decide if we made a mistake. Okay, and the way you'll do it is by simply shouting out. Is a good way to shout. Is a good thing. So, but you'll all have to do it collectively. It's not one singular doesn't mean maybe you just don't like the person's face or whatever. But if you generally you come up and you say someone's made a mistake, then that person dies, and we continue the game with a new story without that improviser. Right? They die. So let's hear it whether you can. Somebody makes a mistake and then pretty good. But of course, as you know, as Spider-Man was also told, with great power comes great responsibility. So do it responsibly, but do it. Otherwise, we'll go on forever. Yeah? If you haven't understood it, you'll get a hang of it once we start. Let's get an opening line of dialogue for a story. Just a simple line of dialogue for the story. Can we get something specific? Somebody. Let's get some names. Huh? Can we give a name? Okay, Aaj main naha raha tha. That's a nice opening start to a story. Aaj main naha raha tha, and we'll take it from there. Yeah? Aaj main naha raha tha. Fortunately, पानी का प्रेशर बहुत ही बढ़िया था. Unfortunately, पानी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म था. Fortunately, मेरे को थोड़ा गर्म पानी चलता है क्योंकि मुझे पता था कि सुनीता आने वाली है. Unfortunately, सुनीता ने ठक 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 किया बाथरूम के बाहर. Fortunately, मुझे पता था
कि पानी का टेम्परेचर इतना गर्म था कि मैं तुरंत बाहर निकल सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली सुनीता बहुत पैनिक थी क्योंकि उसे गर्म पानी से बड़ा डर लगता था। फॉर्चुनेटली सुनीता ने जब मेरे गीले बदन को देखा तो उसमें रोंगटे खड़े हो गए उसके। अनफॉर्चुनेटली मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे मेरे में भी थे। फॉर्चुनेटली सुनीता को खड़े हुए रोंगटे बहुत पसंद आते थे। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों के रोंगटे जो खड़े हुए थे उन्होंने स्टैटिक एनर्जी क्रिएट करी और हमें शॉक लगने लगा। फॉर्चुनेटली शॉक से मेरे रोंगटे चार्ज अप हो गए। Okay, okay. This is the first time in the history of this game that Yogesh has not won this game. So this is a hit. Historic moment. I maintain किसी के ऑडियंस में कभी रोंगटे खड़े नहीं हुए हैं। It's possible. It is possible. एक अपील, एक कोर्ट ऑफ अपील, हायर कोर्ट ऑफ अपील्स में हम अपील दर्ज करेंगे. Let's take another line of the story and we start. और एक लाइन दीजिए। A new story, completely new story. Let's take one. But who? That's not a full sentence. Sorry? No, I want a full sentence. I want a sentence. Sorry? बालाजी में मैं डोसा खा रहा था. I just said like a nice complete sentence. बालाजी में मैं डोसा खा रहा था. बालाजी में मैं डोसा खा रहा था. Fortunately मैंने ऊपर देखा और उधर लिखा था 50% off. Unfortunately मेरे पास 100% के पैसे नहीं थे। फॉर्चुनेटली मैंने वेटर से आई कांटेक्ट किया और पूछा कहाँ से हो, बनारस से। उसने बोला हाँ। Unfortunately वेटर वो रेस्टोरेंट चलाता नहीं था. Fortunately उस समय बनारस की जो बातें हुई उसमें हम खो गए। अनफॉर्चुनेटली वेटर मेरा फूफा निकला। Fortunately क्या हुआ कि उस टाइम पे बत्ती चली गई और मैं वहां से भाग आया बिना बिल दिए. Unfortunately ये लोग भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे जो मुझे नहीं पता था। फॉर्चुनेटली मेरे पर इस बार अंकित चला तो 2 राउंड टिका। मैं जीता हूँ। Ankit Challa is just happy that he was ahead of Yogesh Upadhyay, who's the universal champion of this game. Let's take one more. Let's see how long we can go. आपका कुत्ता भौंक रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। That's a comment. I just want an opening line of a story. सलून में मेरा बाल काट रहा था। हाँ? सलून में मेरा बाल काट रहा था। Saloon में you have a line earlier also, right? You can tweak that line. आपका कुत्ता? कुत्ते के भौंकने से मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ, एक कुत्ते के भौंकने से मुझे नींद नहीं आ रही थी. Let's take it from there. Okay. एक कुत्ते, why are you getting ready to play sport? He's ready to hit the buzzer. I'm getting scared. एक कुत्ते के भौंकने से मुझे नींद नहीं आ रही थी. Fortunately मैंने खिड़की बंद कर दी और फिर लेट गया. Unfortunately उसकी भौंकार इतनी तेज थी कि वो खिड़की पार कर मेरे कान तक आ गई। Fortunately उस अगले दिन मेरा कुछ ज्यादा काम नहीं था. Oh, he went. Oh, yeah, champion. चलो आइए सर, नेक्स्ट. तुमने क्या किया? उसको पहले डरा दिया। तू क्या कर रहा है? हाँ, स्लेजिंग. Australia. Let's do a physical warm up. Free stack Free करना? stack, yeah. Okay, let's do free stack. Okay, we'll explain free stack. Everybody knows free stack? Nobody knows free stack. Everybody knows free stack. No, there are some new people. Those who don't know free stack will probably learn it, but basically it means we start a scene. At any point in time, somebody outside the scene will yell freeze. Freeze. We have to freeze in that physical position. They will tag 1 or 2 of us out and start a completely different scene using the same physicality but doing something totally different. Yeah? And we'll continue doing that. Cool. Yeah? Does it make sense? If it doesn't make sense, it will definitely not make sense when we do it. Well, when do you start? तो आई भी रेडी एक्टिविटी आप जो घर पे करते हो। Skipping. हाँ? क्या भूल गया था मैं? और मुझे तो चालू हो गया। Yes. This is all part of it. Skipping. Skipping. Okay. Freeze. Ow. पापा घोड़ा बनो, पापा घोड़ा बनो. मम्मी देखो पापा घोड़ा बन गए. और मुझे भी जीसस बना के चला गया। ये तुम्हारी औलाद है ना, बहुत क्रिएटिव है। बेटे अनफ्रीज बोलो। पापा उठ क्यों रहे हो? अरे मैं तंग आ चुका हूँ यार। बेटा इतना क्रिएटिव कौन होता है? थोड़े कम क्रिएटिव रहो ना। I don't want you to talk to him like this, okay? हमारी औलाद है। अरे तो हाँ, इसीलिए तो मैं उससे ऐसे बात कर रहा हूँ। Freeze. हमारी औलाद- Freeze.
एक बार तुमने चोरी की, आई फॉरगॉट इट। दूसरी बार तुमने चोरी की, आई स्लैप्ड यू। तीसरी बार तुम मेरे ड्रॉर से बादाम का हलवा चोरी करके लेके जा रहे हो, आई कैनॉट टॉलरेट इट। संपन्न, आई कैनॉट। सर बादाम का हलवा ड्रॉअर में कौन रखता है, खराब होगा ना। फ्रीज प्लीज। क्या मेरे बेटे ने आपको स्पाइडरमैन बनाया? प्लीज। अंकल हमारा बॉल रह गया था यहाँ पे। तुम बच्चे लोगों की वजह से अंकल 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 घर के अंदर कैसे बॉल आ- अंकल अंकल बॉल इधर ही होगा, इधर ही होगा, अंकल अंकल अंकल। And scene, and scene. guys, from this point everything is the play and we start. नमस्कार भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बेहतरीन शो जहां पर हम एक महान लेखक को आपके सामने लाते हैं। आज हमारे साथ हैं मर्डर की दुनिया के बेहतरीन डिटेक्टिव मिस्टर बख्शी खुराना। जी हाँ, इनके दोनों नाम सरनेम हैं। ये इनकी खासियत सिर्फ नहीं है, इसके साथ भी इनकी कई सारी खासियत है। लेकिन आइए ढेर सारी तालियों से स्वागत करते हैं डिटेक्टिव बख्शी खुराना। वेलकम सर, वेलकम। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। शर्मा जी आप गोवा में हॉलिडे कर रहे थे? देखा आपने, देखा आपको कैसे सनडांस होटल में रह रहे थे? अब ये मत कहिएगा मैंने खाया क्या था लास्ट दिन। आपकी वेस्ट 34 है। हाँ? ओह माय गॉड, मैं आपको बता रहा हूँ बख्शी खुराना जी ने जो बोला है मेरी पत्नी भी नहीं बता पाती कि मेरी वेस्ट साइज कितनी है। बेहतरीन। एक्चुअली आपकी पत्नी के इंस्टाग्राम पोस्ट में मैंने देखा। नहीं नहीं ठीक है। ताली हो जाए बख्शी खुराना जी की। तो बख्शी खुराना जी, आज हमारे साथ आप ऐसी कौन सी कहानी शेयर करने वाले, हमारे रसिक प्रेक्षकों को बता दें। देखिए आप जानते हैं मैंने हर लोकेशन में कोई ना कोई क्राइम सॉल्व किया है। मर्डर मिस्ट्री तो मेरी मतलब ऐसे आपके घर का ही है। नहीं, घर का नहीं है। हाँ, मतलब लिखना। घर में मेरे यहाँ बिल्कुल शांति है। हाँ, अच्छा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा पर्सनल हो गया आपसे। बताएं तो आज कौन से लोकेशन? आपके प्रेक्षक जो बोले ओह, कोई भी लोकेशन लास्ट क्या टाइम। बात है प्रेक्षकों, आज तो वो बेहतरीन दिन है जहां पर आपके किए हुए चॉइस को बेसिस पर आज कहानी सुनाएंगे। एक्चुअली अभी दर्शक बता सकते हैं, बाद में कभी जरूरत पड़ी तो कोई किसी लोकेशन पे जिसमें आपने मेरी स्टोरी सुनी होंगी, या आप मेरा ब्लॉग तो पढ़ते ही होंगे आप लोग। सो जब मैं इंडिया में ही रहता हूँ मैडम, सिंगापुर वाले बहुत बुलाते हैं। हाँ? काठमांडू। महालक्ष्मी रेस कोर्स के आज ये मेरे बहुत बड़े फैन है लगता है, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत ये आप सर हाँ। बाद में करेंगे। आज कहानी सुन लेते हैं मर्डर की। शर्मा जी ये कहानी एक्चुअली क्या है? आप सर बैठ के सुनने में बड़ा मजा आता है। वो भी सही है। नहीं आप सुनाने खड़े हुए खड़े करे। हाँ नहीं, ये कहानी करीबन 6 साल पहले की है। सुबह के 6 बज रहे थे और आप जानते हैं महालक्ष्मी रेस कोर्स में सुबह सुबह कितने लोग दौड़ने आते हैं। बताता हूँ आपको क्या हुआ।
साइड दे यार, साइड दे, साइड दे। स्ट्रेस निकलता है ऐसे, रील देखा मैं, क्या बात कर रहा है? सब स्ट्रेस तो निकलता मैं चूचों की तरह दौड़ क्यों रहा हूँ? मैंने रील देखना तू, ऐसे 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 ऐसे। हाँ निकल स्ट्रेस। मच्छर भी है। बॉडी को पता कैसे चलेगा स्ट्रेस वाला है कि मच्छर वाला है? मेरे को भी पता नहीं था। नहीं, मैं बॉडी के एंगल से सोच रहा हूँ। बॉडी क्या सोची कि मच्छर है कि स्ट्रेस है? सॉरी, तो क्या सोच के मारना पड़ता है? मैं तेरे को ऐसे पॉइंट आउट नहीं किया, मिस्टेक नहीं दिखा रहा। वी आर द सेम बोट। मतलब आई एम आल्सो कंफ्यूज्ड। मेरे सेल को पता कैसे चलेगा कि मच्छर है कि नहीं यार, तू साइड से हट ना, बोला कितनी बार यार। अंकल जी आप जाइए, आप जाइए। आप अंकल जी को जानते नहीं हैं? जानता हूँ, बिस्किट फैक्ट्री है इनकी, मैं जानता हूँ सब। सबसे बड़ी बिस्किट फैक्ट्री इनकी है। ये सुबह से आते कुत्ते को बिस्किट देते हैं। मैंने 3 बार पूछा, कभी दिया नहीं मुझे। खुद से भी खरीद सकता है। हाँ वो भी है। Because he is always rude to me. तेरे को कैसे स्माइल दिया उसने? Always rude to me. तू रास्ते में खड़ा होता ना। चलता है मेरे से वो। तेरी कौन सी फैक्ट्री है? I don't know about it. कोई भी मेरी पर्सनैलिटी। मेरा स्वैग तो है ना। वो तो है, पर्सनैलिटी है। वो तो है। हाँ मैं उससे जलन है शायद से। अंकल को। हाँ। ये उनकी वाइफ। हाँ मिसेस अंकल। हेलो हेलो आंटी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा? Nice. स्वीट बॉय। तू फ्लर्टिंग कर रहा है आंटी के साथ? Like her. क्या नाम है तेरा बे? हाँ? क्या नाम है तेरा बे? क्या नाम क्या है तेरा? हम इतनी सारी बात वही तो मैं सोच रहा हूँ, इतनी सारी बातें कर रहा हूँ, तेरे को पहली बार मिल रहा हूँ, इतनी सारी बातें कर रहा हूँ मैं तेरे साथ। बोले लगा हम जानते हैं एक दूसरे को। वो मैं ओके ठीक है, कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। हम गुप्ता। क्या क्या कर रहा है तू गुप्ता? कैन वी बी फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स। मनीष मनीष। मनीष मनीष तू डरता नहीं है क्या? मतलब उसके पास मतलब कितना $1 ट्रिलियन है उसके पास। देखा उसने? हाँ। अभी लड़की मेरे पास है तो किसका डर? लड़की नहीं मतलब आंटी। Of course, मतलब सब यस हाँ। सॉरी परफेक्शनिस्ट सेम जगह पे किया। एग्जैक्टली इधर थोड़ा इधर भी नहीं है। देख मेरे को डर लग रहा है, अंकल जी आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं तेरे को जानता नहीं अभी। ओके गुप्ता, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। Hey Manish. Hey. So nice to see. Oh, Manish, you are now working out, are you? Huh? स्ट्रेस निकलता है। Huh? मेरा अपना idea है। I should not do it. My dad was here, dad and mom. Yeah, auntie went that side, uncle is also that side. This is, I don't know this person, Mr. Gupta. Actually, it was my idea. I told him and he told you. Originally, it is my idea. Oh, you are Gupta, huh? Zenobi, I don't know Gupta. I don't know Gupta at all. Gupta. Peter, what are you doing here? Papa, I can also come to Mahalakshmi Racecourse for walking, no? And then walk, no? But you're flirting with these older gentlemen? I'm not flirting, okay? घर पे बात नहीं करते क्या? We'll talk at home, okay, Papa? कौन क्या आवाज आई? क्या हो गया? What happened? एसिडिटी नहीं है, डेड है ये।
स्ट्रेस निकलने बोला तो आत्मा निकल गई। Let's call somebody. क्या बात कर रहे हैं? मैं टोपी ले आया उनकी। हाँ, हाँ, तो ऐसे ही मर गए वो, ऐसे ही ऐसे ही। मतलब कोई चीज उन्होंने सुनाई दी उनको और नहीं, it was almost just he died, suddenly died in middle of a sentence. And बहुत ही चौंका देने वाली बात है। बहुत In the बिल्कुल। middle of a sentence. बिल्कुल। He was about to say something, he was to hear something, एकदम इंटरप्शन पे इनकी लाइफ इंटरप्ट हो गई। तो सर देखा मैंने क्या? नहीं मैं एक्चुअली मेरे को विवेक जी ने कॉल किया, तो हाँ। कमिश्नर विवेक, जी जी जी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सर, मैं विवेक बोल रहा हूँ सर। मैं इस ऑफिसर का पुलिस वाला। ठीक है सर, हाउ आर यू डूइंग? विवेक, बहुत पेचीदा केस है, हमको इस केस में विवेक से काम लेना होगा। तुम्हारे चुटकुले। मेरा चुटकुला सुनकर ही निकला। बोलो। एक बार ना पप्पी लेडी का शादी हो गया, तो दुल्हन फर्स्ट नाइट पे बोलती आज तो सोने पे सुहागरा है। विवेक, और एक सुनना, विवेक, एक मेरा दोस्त है सलीम, हाँ, हाँ, तो मैंने उसको बोला तेरे घर में कभी चोरी नहीं होता रहेगा, तो पूछता है क्यों? तेरे पास तो अल्लाह ताला है ना। विवेक, दिस इज इनअप्रोप्रिएट, हाँ, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, मेरे को मारा क्लब में। Yes, but let's business. हाँ, ये केस बहुत पेचीदा है। चौकन्ना करने वाला केस है ये। पेचीदा मैं प्रोनाउंस करना सीखा हूँ, let's stick to that. पेचीदा चौकन्ना। मैं काम करूंगा, कल से केस चालू करूंगा, कल मैं जुगनू को भेजूंगा वहां पे जॉगिंग करने को। Of course, sir. विवेक, तुम कमिश्नर हो गए हो, अब मेरे को सर बोलने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। Of course. क्या बात कर रहे हैं? आपको कमिश्नर साहब सर बोलते हैं? अरे भारत का संस्कार ही यही है ना, टीचर को सर ही बोलते हैं लोग, क्या करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे से उम्र में 20 साल बड़े हैं, बट सीखे मेरे से ही हैं। तो सर आईपीएस की मेन जो एग्जाम होती है उससे पहले आप ही तो आते हैं बताने। करेक्ट, मैंने सुना है ऐसा, मैंने देखा नहीं है। करेक्ट, 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 करेक्ट। बिल्कुल। तो एनीवे, आप में जानते हैं मेरा असिस्टेंट है जुगनू जी। मैंने जुगनू को बोला, जुगनू तुम अपने आप को डिस्गाइज करो और जॉगिंग करो और सबसे बातें करो, और मेरे को बहुत ही हाँ। बहुत ही बेहतरीन किरदार है आपका ये जुगनू। आपकी किताबों में इसका कितना बढ़िया व्यंग है। ये इसी तरीके से है कि आपने कॉमिक इफेक्ट के लिए थोड़ा बनाया है वैसे? मेरी बहन का लड़का है। मैं समझ सकता हूँ। तो जीजी ने बोला कि भाई 27 साल 28 साल का हो गया है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, आप क्यों नहीं सिखा देते कुछ। अच्छा, ठीक है, तो- मैं समझ रहा हूँ। मेरा भी एक साला है, हाँ, फालतू मेरे की कैमरा के पीछे। हाँ, इसका कैमरा भी हमको फेसिंग नहीं कर रहा है। हाँ। काम का नहीं है ना ये। नहीं बट शर्मा जी, प्यार से बोलना Sorry, चाहिए। हम हाँ, सॉरी, हाँ। प्यार से बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एनीवे, मैंने जुगनू को भेजा जी। और जुगनू ने जॉगिंग शुरू की अच्छा, और बाकी लोगों से बात शुरू की। अरे वाह। Excuse me, sir. Nice. Sir, कुछ दिन पहले हत्या हुई थी, आपको पता है? हाँ, आई वाज देयर। मैंने की तो उनको फटाफट वहाँ से फोन किया। जो भी मॉर्ग की जो वैन होती है, एम्बुलेंस वगैरह सब मेरे ही कारण हुआ। आई एम वेरी सोशल ह्यूमन। सर, आपकी बिस्किट फैक्ट्री भी है आपकी। आप तो काफी कुछ जानते हैं मेरे बारे में। तो मुझे बिस्किट खाना अच्छा लगता है। Do some research. Well, we specialize in dog biscuits. मेरे पास कुत्ता भी है। वो करिश्मा है, ऐसा है कि
आपका तो हाँ तुम यहाँ पर आए, हम एक्सक्यूज मी बोला, थोड़ा डिस्टर्ब किया, ऐसा कोई तो रीजन होगा? अच्छा कॉन्वर्सेशन किया है, एक नाइस कॉन्वर्सेशन किया है। तो तुम्हें लग रहा है ना? ये छोटी मोटी बात पे अच्छी कन्वर्सेशन होगी। You didn't enjoy my conversation? I want more of it. मेरा फेवरेट कलर येलो है। देखो, आगे ना आइडिया। और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे येलो कलर बहुत लोगों का फेवरेट होगा। क्यों ना मेरे डिस्ट्रिक्ट को मैं येलो बनाऊँ? गुड सर, चल सर मैं निकलता हूँ। मेरा और कन्वर्सेशन है अभी। नहीं रुको, कहाँ आ रहे हो? देखो देखो मेरी बात सुनो। और बात। नहीं सर, अब प्लीज मुझ पे बात। देखो आज तक ना मैं ही सिर्फ लोगों को कुछ ना कुछ पूछा, पहली बार किसी ने एक्सक्यूज नहीं हूँ। सॉरी। अरे तो भागी नहीं, क्या बात है? रोका था, पूरा दस्तूर था। हाँ लेकिन अभी मेरे मुंह में बात कौन सी है? तो क्या करते हो बेटा, तुम क्या करते हो? मैं नाम क्या है? एक मिनट सर, मैं कम टू डिटेक्टिव ऑफिस। सर मैं गया बेटा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ सर। मैं सर नहीं कर पाया प्रोडक्टिव कुछ। सर आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको लेट डाउन किया है। मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, आई एम रियलाइजिंग सर। आप मुझे खाली इसलिए रखे हो क्योंकि मैं आपकी बहन का बेटा हूँ, मेरे में टैलेंट नहीं है। सर यस मैंने देखा, मैंने इस पे स्पाई किया, इसे फ्लर्ट कर रहा था क्लाइंट के साथ, ये कुछ काम का नहीं है, और क्लाइंट के पॉकेट से ये निकला सर। फ्रीज 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 एक मिनट। आप कहना चाहते हैं कि आपके पास जुगनू और जुगनी भी है? करेक्ट, जुगनू के ऊपर जुगनी, जुगनू के ऊपर जुगनू, जुगनू के ऊपर जुगनी, जुगनी जुगनू। लेकिन आपके बाकी किताबों में तो इनका कोई जिक्र नहीं है, कोई स्पेसिफिक, ये मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक और स्पेशल केस होगा। बहुत स्पेशल केस था ये, क्या बात उनको है। दो असिस्टेंट रखने पड़े। दर्शकों आज तो मतलब हमारा मतलब क्या बोलते हैं, लकी दिन है, लकी दिन। क्या बात है? रेशमा जी, रेशमा जी, रेशमा जी, इनके बारे में थोड़ा बताइए। इनके बारे में एक्चुअली मेरे को कॉलेज में मिली थी ये। दो समोसे लाना यार। ये ले। ए, क्या हो गया? बहुत रूड़े, क्या हो गया रूड़े साले को? आदमी। हाँ आपको मैं तेरे जैसे क्यों बोल रहा हूँ? That's nonsense, man. Fuck him anytime. समोसा खा यार तू। Spoil my mood, man. Look, I need some stress pills, man. तेरी आवाज क्यों चेंज हो रही है? तू कैसे चालू किया अभी वापस? I'm just watching a lot of content these days. I'm just like trying to. वही वो कौन है? नई लड़की है, बहुत चुप रहती है। All is quiet, huh? Would you care for some samosa? है मेरे पास, No, the one which on our table. जिसका बिल इसने दिया है। आपकी 8 बार जब आप आए हो यहाँ पे, 7 बार इन्होंने बिल दिया, 1 बार इन्होंने दिया है, और वो भी पैसे इन्होंने आपके बटुए से चोरी करके लिए थे। मैं सब नोटिस करती हूँ। Art of noticing. आर्ट ऑफ नोटिसिंग। ये भी कोई आर्ट है? रेशमा जी मेरे से भी आगे थी उस समय। अच्छा। सो हमारी पार्टनरशिप तब से बन गई। पर रेशमा जी बहुत ही शांत रहती हैं और शी डजंट लाइक द लाइमलाइट एट ऑल। तो ये सब शो करने मैं आता हूँ और वो कभी भी अपना नाम नहीं बताती हैं। करेक्ट और करेक्ट। ये वाली स्टोरी में आपका दिल थोड़ा फिसल गया। नहीं, मेरा दिल तो कैंटीन में। तो फिर बताइए ये मर्डर में आगे क्या हुआ? फिर रेशमा जी ने आपको बताया, एक क्लू दिया आपको। हाँ,
उन्होंने क्लू दिया, वो क्या क्लू है मैं बाद में बताऊंगा कि उन्होंने मेरे को हाथ में पकड़ाया था, उन्होंने पिक किया था, आई टेल यू लेटर। Yes. ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि जो फैमिली है इस मुद्दे के सेंटर पे, बिस्किट वाले, क्या नाम बताया था मैंने आपको? बिस्किट वाले हाँ, पार्ले जी। सर श्रॉफ फैमिली का नाम था सर, मैंने भेजा था आपको। Correct, उसके correct. जेब से विजिटिंग कार्ड भी निकला है। हाँ, मिस्टर श्रॉफ। ये रेशमा जी थी, ये रेशमा जी थी। आपने देखा उनको? हाँ मतलब मेरे ख्याल से बाकी ऑडियंस ने नोटिस भी नहीं किया होगा, उतनी साई की तरह आती हैं, साई की तरह निकल जाती हैं। अच्छा अच्छा ओके ओके। सो श्रॉफ फैमिली के पास, श्रॉफ फैमिली को मैंने पूछा रेशमा जी से कि कहाँ पे मिलेंगे श्रॉफ फैमिली वाले, तो उन्होंने बताया उन्होंने मेरे को जवाब ये दिया, वाई मनी इज बेटर देन लव। कितनी डीप बात कही, बट समझा नहीं मैं क्यों। रेशमा जी रिडल्स में बात कहती हैं। अच्छा। उन्होंने बोला कि श्रॉफ फैमिली जो बिस्किट वाले हैं, पूरी की पूरी फैमिली अगले दिन लोकल आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में जाने वाले हैं। तो मैंने कहा जब श्रॉफ फैमिली वहां पे हो, आप भी जाइए और फैमिली के अंदर के डायनामिक्स समझिए, मिस्टर मिसेस और बेटी तीनों होंगे वहां पे। अच्छा ओके। अक्षत, मॉर्निंग सर, यस गुड मॉर्निंग। नाइस शर्ट। थैंक यू वेरी मच रक्षित। हमारे सबसे बड़े क्लाइंट्स आने वाले हैं, प्लीज शो देम द लॉकर, द स्पेशल लॉकर। रक्षित, ऑफ कोर्स सर। यस, गेट अप रक्षित, वेट फॉर देम रक्षित। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो मैम, मैं कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ आप दोनों के बीच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिस इज रक्षित, आवर वेरी एबल ऑफिसर। अरे वाह रखिए थी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैम सर का फोन आया, हाँ। उन्होंने कहा आप लॉकर खोलना चाहती हैं, वो स्पेशल वाला लॉकर, हाँ और सब कुछ ले जाना चाहती हैं। हाँ। ठीक है मैम, प्लीज कम। रक्षित, हम सोच रहे हैं ना कि हम यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएं, बहुत दूर Mom? बेटी है ना। हाँ बेटी। पापा तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। हाँ मैं जरा टॉयलेट। वी हैव वॉशरूम। हाँ हाँ आई जस्ट गो। रक्षित स्पेशल बेटी जरा ये लॉकर का जरा देख, ये हमारी बेटी ना बहुत समझदार है, सब बता देगी, सब देख लेगी, ठीक है? ठीक है। डोंट वरी अबाउट सिक्योरिटी, अपनी बेटी है, देखिए शक्ल मैचिंग भी है ना। एग्जैक्ट सेम टू सेम। बिल्कुल। चल मैं जरा मॉम, जाइए। हाँ हाँ टेल डैड टू कम। नो, हाँ आई विल। ओके। थैंक यू बेटा। हेलो, आपको ठीक लगता है मम्मी आके ऐसे कर? क्लाइंट्स विल वेट फॉर कैन आई से समथिंग? मिसेस श्रॉफ टू कम। रक्षित, आप गए नहीं उनके साथ बाथरूम? आई डोंट लाइक दिस। हाँ, मैं कब कितना बार बोलती हूँ मम्मी को। आई नो सर, आई एम इंटर्न बट I have feelings. You have no feelings. You are intern. Sir, but this is too You are an intern. You have no feelings. You have no feelings. Stop it. जाके देखिए मिसेस श्रॉफ ठीक है बाथरूम के नहीं। Yes, sir, okay. पापा इज हियर। नमस्ते सर, हाउ आर यू? आप उस साइड से कैसे आए? एंट्रेंस इधर है, आप मतलब इस साइड से आ गए। वो मेरी जो वाइफ है ना, हाँ। वो बाथरूम की विंडो से चिल्ला रही थी मुझे। परेशानी। सब ठीक है? रक्षित, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। द इश्यू ओके? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। Sir, no, I can't take this खिड़की के responsibility, अंदर sir. से I have to make sure that Mrs. Shroff is okay. पापा आप खिड़की से कैसे आ गए? बेटा वही मैं तुमसे कहता हूँ, थोड़ा फिजिकल बना करो ना, देख बड़ा इजी रहता है, ऐसे खिड़की खोली, ऐसे पैर डाला उसमें से। आप खिड़की से आए? बिल्कुल। हमारी सिक्योरिटी का रक्षित, आपका बैंक कैसा है? वो जो मैं सोच रहा हूँ। रक्षित, what kind of security is this? Please check. I want to make sure Mrs. Shroff is okay. सर, मिसेस श्रॉफ का कंडीशन है, वो टॉयलेट करने टाइम ऐसा करना चाहती है। आई डोंट लाइक दैट। देखो नहीं रक्षित, सर, if you want to resign, you can resign on the 31st of next month. She is trying to- Before that, बेटा एक्सक्यूज मी, आपकी सिक्योरिटी आपका इंटर्न देखता है? actually क्या है ना कि किस टाइप का बैंक है? We are having a lot पापा of यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी नहीं है कुछ? एक मिनट, आप लोग मुझे तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो? not at all, sir. Not at all. Please have a seat. Please. क्या कह रही है वो? सिक्योरिटी नहीं है बैंक
can't. Sir, this is the special locker area, sir. स्पेशल लॉकर मतलब क्या बाथरूम से कोई भी आ रहा है आपके यहाँ पे तो, और आपका इंटर्न सिक्योरिटी देख रहा है? This is a good question. रक्षित, तुम्हें बाथरूम का इंचार्ज बनाया था मैंने ना, उसके विंडोज पे अपने मतलब बार्स नहीं डाले? सर, आपका केवाईसी नहीं हुआ है। अरे केवाईसी नहीं हुआ तो अंदर कैसे घुस गए? बाहर नहीं है, उससे हमारा क्या कनेक्शन है? आई डोंट नो सर, केवाईसी नहीं हुआ मतलब कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं बेटी, it's okay, it's okay. Let's do I- business that we are doing for, हैं? But KYC is also important, sir. We will do the Such- KYC. Can we get our stuff from our locker? Yes, please. Rakshit, let us take him to the locker, और please. उसके लिए भी KYC चाहिए और Sir, for you, nothing, sir. Sir, for you, absolutely no reason. Thank Please come, please come, please come to the locker. Come this way to the locker. अब Mrs. Shroff किधर है? She's... तो वो बाथरूम में अभी भी इंसिस्ट कर रही है। Sir, the problem is you and Mrs. Shroff are joint account holders in the locker. एकदम कंफ्यूज हो I गए need ना both शर्मा of जी you. आप? बिल्कुल बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हूँ मैं तो। मैं अभी तक वो कॉन्वर्सेशन में घुमा हुआ था। अच्छा, आप खो गए थे? अभी मैं सोच रहा था कि क्या बातचीत हो रही थी। आपके सामने आ रहा था। हाँ, हाँ। बहुत कंफ्यूजिंग का। जी बट फैमिली डायनामिक्स आप समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। बेटी बेटा नहीं, बेटी फादर और वाइफ तीनों में बहुत रस्साकशी थी। जी और पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। हाँ जी, आप हमें इस फैमिली की तरफ लेके चले गए हैं हाँ, और मर्डर तो हुआ था मनीष जी का। मनीष जी का, करेक्ट, तो इस फैमिली का उस मर्डर से क्या लेना देना है? बिल्कुल करेक्ट। सबसे, और मेरी किताबों में आपने देखा होगा, स्टार्ट विद द विक्टिम, है ना? बिल्कुल विक्टिम मनीष जी। मनीष इज द विक्टिम। मनीष जी हाँ। 30 ईयर ओल्ड, एकदम फिट यंग मैन, यस दौड़ने आते थे, बिल्कुल गिर गए, मर गए। मनीष जी थे कौन? हमें कौन? पता ही नहीं बिल्कुल। मनीष जी कौन थे। यही तो आपकी किताबों में मुझे बढ़िया लगता है, आप सब लोगों से मिलाते हैं बट मेन विक्टिम को एकदम ऐसे जैसे बर्गर के बीच में चीज ठूसी जाती है वैसे डालते हैं। मनीष जी के फ्रेंड्स सब बैठे हुए हैं। वो लोकेशन, मैंने कहा लोकेशन कौन सी लोकेशन है? ऑडियंस बता देगा आपको, करेला जूस लाओ जी इनके लिए। सॉरी सर, सॉरी मंगा। ऑडियंस बताएगा कौन सी लोकेशन पे था। हाँ बताएगा कोई बताएगा। जू जू बोल रहे हैं। जू में जू मनीष जी के दोस्त फॉर सम रीजन जू में थे। उन्हें अच्छे लगते होंगे जानवर। उनको जानवर अच्छे लगते होंगे। हाँ। तो देखते हैं क्या होता है। आपने कहानी में कहा भी था मनीष जी को कुत्ते पसंद थे। करेक्ट। तो जू में मनीष को चिड़िया देख, कितनी सुंदर लग रही है। देख रहा हूँ यार, देख रहा हूँ। अपन इतने लाइफ में बिजी है, क्या देख रहे हैं? तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार। रील देखा वो स्ट्रेस वाला? मैंने देखा, करता नहीं। मुझे लगा सही नहीं है, लेकिन ट्राई किया एक बार, पता नहीं। ये तो पैसे वालों के बात नहीं करेगा। तो क्या लगता है ये जू खरीद ले अपन? अरे अगर मेरे को ऐसा कुछ रहेगा तो मैं तो आगे जाऊंगा। क्या डायनामिक फ्रेंडशिप अपना। फिर हाय वंडर हम अरे लोग तू भी एक साथ नए में कैसे? किसी नए बंदे से मिला रहा था, तू इधर चिड़िया नहीं, हाथी। चिड़िया के साथ है। हाँ, ये तू मेरा चश्मा पहन। मस्त जू है यार, मस्त जू है। अब देख थोड़ा सा इधर। हाथी देखा? हाँ दिखा आवाज भी आया। हाँ, मस्त है यार। और जैसे अपन ने उसको हाई किया, उसने हाई किया, फिर चुप। ये सारे जानवर ना इस जू में बिस्किट खाते। बिस्किट खाते। क्या इंफॉर्मेशन है, मजा आया। मेरा एक बिजनेस आइडिया। कसम मनीष है ट्रिविया एक्सपर्ट। एकदम। मनीष क्या बोलता है, जू खरीदे? जू खरीदे? हाँ। हाथी ने हाँ बोल दिया। तू भी हाँ बोल। तुम लोग को मैं एक बात बताता हाँ है। बोल। कोई भी जगह पे जाता है तो उसको एंजॉय करते हैं ना, खरीदने का बात अडानी अंबानी ये है ना, उस जगह को एंजॉय करते हैं ना। हाँ? एयरपोर्ट खरीदना है, ये खरीदना है। ये अग्रवाल खरीदता है ना। मैं तुमको कितने एयरपोर्ट खरीदे तूने आजकल? 36 पे। हाँ, एक जू नहीं ले सकता है? हाँ? मनीष तू इतना पैसे के पीछे भागेगा? मैं नहीं भाग रहा, ये है, इसके पास पैसे हैं। तू मेरे पीछे भाग रहा है। हाँ, मतलब ठीक है, तू आगे बोल रहा, क्या बोल रहा? मैं बोल रहा है अपन अपने फ्रेंडशिप पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मैं तुमको मिस कर रहा है, माँ कसम।
माँ बोली मर गई थी तभी। क्या बोली मरते वक्त? क्या बोली वो बोली माँ? इसका साथ कभी मत वो छोड़ना। माँ क्या बोली? माँ बोली माय मनी इज बेटर देन सेक्स। तेरी माँ बोली? काश मैं फॉलो करता है इसको अपनी लाइफ में। मनी इज बेटर देन सेक्स। एक बार नहीं किया नहीं नहीं, लेकिन माँ ने बोला माई मनी इज बेटर देन माई सेक्स। ये बोला माँ एक ने, लाइन- ये बोला माँ ने। देखो फिर से बोल, याद कर। नहीं, तुम लोग समझता नहीं है मेरा फीलिंग। मेरे को एक लाइन में माँ और सेक्स नहीं चाहिए। मनी तो मेरे को इनसे नहीं यार। तू ही बोला, मैं थोड़ी ना बोला। तू ही माँ को याद करके सेक्स बोल रहा है। माँ सेक्स और माई भी था यार बीच में। माँ लास्ट में बोली मेरे हाँ को, क्या बोली? इन दोनों फिर का- से बोल। इन दोनों का साथ कभी मत छोड़ना। ये कब बोली माँ? मरने से पहले बोली ना, अभी तो बोला हुआ। अभी तो बोला मरने से बोला माई मनी इज बेटर। हमेशा कह इन रही दोनों का साथ मत छोड़ना। मनी इज बेटर देन सेक्स। सेकंड लाइन बता। ऐसे बोलना। मेरे को लगता है वो कोरिलेटेड था। मेरे को नहीं करता है, कोई भी रिलेटेड था। मेरे को नहीं, मेरा विजू में नहीं यार। सॉरी भाई, तेरे दिल की दुखी नस को निकाल दिया बाहर। क्या हुआ रहेगा मेरी माँ और बाप के बीच में? तड़पता हूँ कभी कभी। दारू नहीं चढ़ती मेरे को, मैं तड़पता रहता हूँ। मैं ऐसा बोलने वाला था कि तेरे माँ बाप के बीच में ऐसा पैसा एक्सचेंज हुआ रहेगा, लेकिन फिर तू आया कैसे? ओहो हो। अच्छा नहीं, अभी जोक नहीं चाहिए। सॉरी तू तड़प मत। मेरे को ये बात बोलना था, अभी मेरे को लाइट लग रहा है। सुन रहे? मैं थेरेपी अफोर्ड कर सकता है, बट कुर्सी में बैठना पसंद नहीं है। लेट नहीं सकता क्या वहां पे? सुना लेट भी सकता है वहां आई पे। प्रीफर यू गाइस। नहीं खरीदेंगे अपन से। अरे क्यों? इसकी माँ की वजह से? अरे माँ थोड़ी ना। कुछ मत बोल। सॉरी और उसने बोला मनी इज बेटर देन सेक्स ना। नहीं अपन तेरे को बिस्किट में इंटरेस्ट है ना? नहीं, मेरे को जू में इंटरेस्ट है। तू बोला जू में ये जानवर बिस्किट खाते हैं। हाँ, तो? वो ट्रिविया का कोई पॉइंट था फिर। अरे क्योंकि सस्ते में खिला देंगे ना सबको। क्या चल रहा है मेरे को? तेरे को पैसा चाहिए ना? तो ये क्या था कि आप कहाँ गए थे? सर मैं एक कैरेक्टर की चीजें अपने साथ ले आता हूँ ताकि मुझे बढ़िया लगता है। मैंने आपकी किताब पढ़ के सब कलेक्टर्स आइटम बना के रखे हुए हैं। अडानी जी का लड़का भी यही पहनता था। सो मैंने उनको कहा कि भाई, मतलब समझ में आया मेरे को कि मनीष जो था जी बहुत मनी माइंडेड था। अपने दोस्तों से, एक खास दोस्त से चलता था जिसका हम नाम नहीं लेंगे, उसे नाम तो ले ही लिया है वैसे। तो वो, बट अभी भी मुझे समझ नहीं आया। हाँ अभी तक तो मैंने ऐसा पूरा समझाया भी नहीं, बट आप बताइए क्या उस, मैं तो इतना आज तो चलिए कुछ सवाल पूछिए। देखिए नहीं, पूछिए। पार्ले जी का इन सबसे क्या संबंध है? मतलब वो बिस्किट के कंपनी के मालिक का। मनीष मनी माइंडेड, वो बिस्किट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो था जू का, वो अपने हाथ में लेना चाहता था। ओके, इवेंचुअली इन्होंने जू खरीद लिया। वो तो खरीदवा लिया दोस्त हाँ, से, हो गया हाँ, फिर लेना चाहता था। और पूरा जू खरीदा और सिर्फ बिस्किट का कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया। बिल्कुल। और श्रॉफ साहब के पेट के ऊपर बड़ी लाश पड़ी। श्रॉफ साहब। तो श्रॉफ साहब का बहुत बड़ा मोटिव था, क्यों मर्डर करेंगे। बट मनीष की कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं थी। मनीष पूरी फैमिली के साथ बहुत ही इंटीमेटली कनेक्टेड था। ओह यस, वो ज़ेनोबिया को मिला। उनकी बेटी नहीं, इनकी बेटी, श्रॉफ साहब की। हाँ श्रॉफ साहब की बेटी, श्रॉफ साहब की हाँ बेटी। करेक्ट, उनकी बेटी। इतनी सुंदर किरदार को मैं छोड़ कैसे सकता हूँ? बहुत। ओके। कहाँ मिला? बहुत ही अजीब सी जगह पे मिला। और मैंने कहा जुगनू को आप, नहीं वो तो मर चुका था, बट मैंने कहा जुगनू मर चुका? नहीं, मनीष मर चुका था। हाँ। तो ये स्टोरी जुगनू को किसी ने सुनाई कि जब श्रॉफ, मनीष और ज़ेनोबिया मिले, कहाँ पे मिले वो भी ऑडियंस ही बताएगा। ठीक है, बता। अच्छा पूछ। हाँ बताइए। गुंडाउली स्टेशन। गुंडाउली स्टेशन पे मिले वो? गुंडावली स्टेशन पे मिले। ओ मेट्रो स्टेशन है, करेक्ट। हाँ, वो वाली लाइन पे। तो वहां पर मिले ये? हाँ मिले। ओके।
गुंडवली के लिए गाड़ी 1 मिनट में आ रही है। गुंडवली पे गाड़ी 1 मिनट पे आ रही है। एक्सक्यूज मी, Yes, इज दिस गुंडावली स्टेशन? yes. तो गाड़ी यहीं पे आएगा, गाड़ी यहाँ Yes. पूरा या- चेकआउट कर लिया? Zenobia! Zenobia! मनीष, Manish! भाग चलते हैं। तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते थे। तो भेजा था मैंने, गुंदावली स्टेशन आ जाओ, और मैंने कहा था ऐसे आ जाओ कि कोई देख ना पाए कि तुम आ रहे हो यहाँ पे, और ये भी कहा था कि कोई डिस्गाइज में आ जाओ जैसे कि मैं। ऐसा हुआ था उधर। स्पीकर, मैं बोलता हूँ 1 मिनट में गाड़ी आएगी तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? मेरा जॉब है ना, रूटीन। अच्छा, अभी तक आप उधर ही हैं। मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं तो पैसेंजर हूँ ना। फिर randomly लोगों को आगे मत बोला कीजिए। आपसे बात की ना उसने। एक्सक्यूज मी, मैंने पूछा था ये कोई लास्ट स्टेशन है? हाँ, लास्ट स्टेशन है। तो लास्ट स्टेशन पे कोई बुलाता है क्या? तो लास्ट स्टेशन पे चढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेशन पे उतरेंगे, कंफ्यूज कर देंगे तुम्हारे फादर को। कंफ्यूज हूँ मैं भी कंफ्यूज हूँ। अभी तक सेफ्टी भी नहीं लगा दी। मैं उधर से देख रहा हूँ। देखो लेडीज की लाइन में आप खड़े हुए हैं। देखिए, क्या परेशानी है? It is my body, my पल्लू। नो, ये पर 12 बार गिरा ये। तो कभी आप ऐसा करके 8-10 लोग को मार के कैसे हो? नो, ही इज राइट। आपके लेफ्ट साइड कोई खड़ा नहीं रहता है। सेफ्टी पिन लगा लीजिए ना। मुझे लगा नहीं। गुंडवली की गाड़ी 1 मिनट में आएगी। गुंडावली स्टेशन पे ही तो आएगी। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये गुंडावली की गाड़ी। यहाँ पे अनाउंसमेंट गुंडावली की गाड़ी का क्या फायदा? यहाँ तो रिसीविंग स्टेशन है ना। बिल्कुल। मैडम, मैं सर, हाँ हाँ सर, बोलो बोलो जुनू जुनू। तो मैडम क्या बोल रही थी? सर मुझे बहुत गुस्सा है। हाँ बोलो। मैं इतना सीख के आया था। हाँ। 1 मिनट में गाड़ी गुंडवली स्टेशन आ रही है। हाँ, मैं वो कितना मजा आ रहा था बोलने में। अरे बट वीटी पे ये थोड़ा ना बोलेंगे कि वीटी की गाड़ी आ रही है। वीटी पे बोलेंगे दादर की गाड़ी आ रही है या फिर उधर की गाड़ी आ रही है। वही तो गलती है। जब भी वो लड़की पहचान गई कि तुम नकली हो। फ्रीज। सर, एक चीज तो वैसे भी मतलब अभी तक एकदम वापस नहीं आते, वो हाँ। कहानी में अटके रहते हैं। हाँ। जैसे क्या बोलते हैं, क्लाउड। हाँ, सर, आई एम वेरी श्योर ये सारे स्टेशनों के बीच की कॉन्वर्सेशन का मर्डर से कुछ लेना देना जरूर है। ये पहचानना बहुत मुश्किल था। ऑफ कोर्स, प्लीज कैरी ऑन प्लीज। फ्रीज। कुछ तो फिशी है ज़रूर। बहुत जरूरी, बहुत फिशी मेरे है। ख्याल से तुम्हारे फादर ने किसी को भेजा है हमें लग फॉलो रहा करने। है, लग रहा है। ऐसे तुम सही कह रहे हो। यहाँ पे कैसे अनाउंसमेंट करेंगे ऐसे? भूख लगी है मुझे। भूख कहां से आ गई बीच में? आ गई बीच, टेंशन होता है तो भूख लगती है मुझे। कंट्रोल करो मनीष अपने आप को। ठीक है, ये औरत आ रही है तुम्हारे पास। 15। देखिए मैडम, हम प्राइवेट बातें कर रहे हैं यहाँ पे। आप प्लीज यहाँ के हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये पब्लिक प्लेस है। मालूम है पब्लिक प्लेस है, लेकिन प्राइवेट बातें हो रही है। और आप एक कम सबसे पहले तो इसको खोज। How dare you touch me? आई एम अ गर्ल। So, ये लेडीज है। girl on girl violence नहीं चलेगा यहाँ पर। फिर ये क्यों हो रहा है? स्टेशन, ट्रेन, ट्रेन। इंसान का सिर्फ टोपी बचा है। क्या बात कर रहे हैं आप
सर नहीं तो मनीष तो मरे नहीं, मनीष तो बाद में मरे। मतलब मनीष की मौत तो सेट थी, बट उस दिन नहीं मरे वो। उस दिन नहीं मरे। तो ये कहानी पहले हुई थी और मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि जुगनू को एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए श्रॉफ साहब ने ऐसे ले लिया था और जुगनू को मैंने बहुत मारा बाद में। तभी मैं सोचा मर्डर से पहले जुगनू वहां करके, मैं भी यही सोचा कि जुगनू कर क्या रहा है। सर ये केस तो बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया। बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया। पेचीदा? पेचीदा। Yeah, I've just got this word. Let's be comfortable with it. पेचीदा। ड्रिंक 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 ड्रिंक। हाँ हेलो, अरे सर कैसे हो? कौन कौन बोल रहा है? जो यार विवेक, विवेक कल मैंने ना हाँ। एक सेंटेंस में 3 बार पेचीदा यूज सब टोपियां ऐसे ऐसे कर रहे थे मेरे सामने। विवेक, विवेक तुम सिंगल हैंडेडली सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ा दोगे इस सिटी का। एक जोक नया लिखा है। तो एक बार मेरा दोस्त खाना खाने जाता है होटल में, हाँ। और वेटर को बोलता है एकदम स्पाइसी खाना लाओ। हाँ। तो बोलता है ला आऊंगा, फिर से बोलता है एकदम स्पाइसी खाना लाओ। तो वेटर ने बोला खाना खाने आ रहा हूँ कि गांड जलाने? विवेक, विवेक थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल करो यार, ये कोई जोक था क्या? हाँ क्लब में बहुत मारा मेरे को। क्या हो रहा है फिर? What is the update? प्रेशर बढ़ रहा है मेरे पे, क्लब में भी और ऑफिस में भी। तुम इसे घटिया जोक मारोगे तो ऐसे होगा विवेक। विवेक, केस इज गोइंग वेरी वेल। मेरे को मालूम पड़ा है कि जो विक्टिम था मनीष श्रॉफ साहब के बिजनेस पे अटैक कर रहा था, उनका जू का बिजनेस ले रहा था और मनीष का श्रॉफ साहब की बेटी के साथ चक्कर भी चल रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग नहीं मनीष, बहुत ही पेचीदा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए आपने इस कहानी का नाम पेचीदा रखा। वाह वाह, क्या बात। तो बहुत बिल्कुल समझ गए, पेचीदा केस था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं एकदम ही कंफ्यूजन में था। सर कंफ्यूजन वाली तो बात होगी, लेकिन हाँ। आज जब हम इसको देखते हैं तो कितना इजीली देख सकते हैं। हाइंडसाइड में सभी इजी लगता है। हाँ। मैंने कहा एक किरदार है इसमें, 2 किरदार जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कौन? एक तो जो आदमी शुरू में बात कर रहा था, जिसने वो सब चालू किया था, जिसने बताया था कि ये सब करना, बिल्कुल। ओ, वो भी तो वहीं पर था। वो भी तो वहीं पे था। बिल्कुल। तो मैंने रेशमा को कहा उस आदमी का पीछा करो, और रेशमा उसके पीछे गई। दूसरी किरदार, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। हाँ। You want ride? आपके पास पेट्रोल नहीं है मिस्टर गुप्ता। How? क्योंकि आपने भरा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। इतना सारा? उतर जाइए बाइक से, जरूरी बात करनी है आपसे, आपको भी पता है क्या जरूरी बात करनी है आपसे। प्लीज कम दिस साइड। हम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? आप जवाब दे दो मेरे। आप जा सकते हैं लेकिन आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप सुनना चाहती हैं मैं क्या कह रही हूँ। बोलो रेशमा। आपको देख के लगता है आपका रेशमा। बिल्कुल सही गुप्ता। ऐसा मैं पागल नहीं हूँ, मेरे को कोई ना कोई फॉलो कर रहा है उस दिन से। मालूम है। मैं भी देखता हूँ CID। और क्या क्या पता चल गया है? पुलिस को पता चल गई तुम्हारे बारे में? मेरा सारे मतलब हिसाब मेल फीमेल सब कंफ्यूज हो रहा है आजकल क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है। तुम्हें देख के पता नहीं क्या क्या होता है गुप्ता।
लेट मी मेरा प्रॉब्लम है स्वैग। फिर आगे बात नहीं बढ़ती है यार, तेरी तारीफ में अटक जाती है। 18 साल से मैं सिर्फ साइलेंटली काम कर रही हूँ वो बख्शी के पीछे। आज पहली बार। तुम्हारा बॉस थोड़ा हलकट है, मैं मुंह पे नहीं बोल सकता क्योंकि उसने किताब लिखी है। बहुत सारे केसेस मैंने सॉल्व किए, लेकिन पहली बार आज मैं एक खूनी से प्यार कर रही हूँ। प्यार कर रही हूँ, वो खूनी नहीं है। मैं खूनी नहीं है। ये कैसे समझ लिया मैं तुमसे प्यार करती हूँ? विश्वा, हाँ गुप्ता, क्या गेम खेला तू? सर बात कर रहे हैं आप? तो बल्ली ठीक है, इनकी लव स्टोरी तो ठीक है, और इनकी लव स्टोरी से मनीष से क्या लेना देना? ओ ये आपने ऐसे ही ऐड करी रैंडमली जस्ट टू हैव द, जैसे बॉलीवुड मूवी अगर आपको उसमें रोमांटिक चाहिए रहता ना, डिटेक्टिव के भी दिल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। I also have feelings. बिल्कुल सर। Oh, so are you saying that? नहीं, मैं I am not saying that. Okay. Okay. Fine. We won't touch that topic. It's personal. Yes. So what about Manish? No. Manish? Sorry. हाँ क्या? What about Manish? हाँ, तो मनीष का केस, ये गुप्ता और मनीष का कनेक्शन। गुप्ता और मनीष का कनेक्शन, मैंने रेशमा से पूछा। रेशमा ने तो सारा कच्चा चिट्ठा पूरी निकाल दिया था, और हम लोग एक ईरानी कैफे में मिले, और क्योंकि आप और रेशमा? हाँ, बट बैक टू बैक बताता हूँ आपको। तो तुमने उसको बोला तुम प्यार करती हो उससे? सर, ये जो कार्ड मैंने निकाला था मिस्टर श्रॉफ के पॉकेट से, हाँ, इसमें सब कुछ है। ये उन्होंने लॉकर से निकाला था उस दिन। वो लॉकर से सीधे महालक्ष्मी रेस कोर्स आए थे। देख रहे हैं इस पे क्या लिखा है? देख रहा हूं। क्या लिखा है इस पे? इस पे तो लोकेशंस के नाम लिखे हुए हैं। बहुत सारे लोकेशंस के नाम लिखे हैं सर, बहुत सारे लोकेशंस। पहला वाला लोकेशन देखिए, पढ़िए। पहला लोकेशन लिखा है कार्टर रोड। कार्टर रोड सर, कार्टर रोड पे। दूसरा लोकेशन लिखा है धारावी। मैंने आज नाश्ता किया, काफी पेचीदा था। मैं तो पढ़ता रहता हूँ, एक नया जोक्स भी लिखा है। केमिस्ट्री साहब, थर्मस का खाइए। एक बार मैं इमरान हाशमी किस करता है, इतना अंदर चला जाता है, हीरोइन का किडनी स्टोन निकाल लेता रेशमा अपना हाथ दो एक बार। सर रेशमा, जी। तुम उस गुप्ता से सचमुच प्यार करती हो? नहीं सर, वो खूनी है। गुप्ता खूनी है? ऑफ कोर्स सर, ये आपको पता नहीं अभी तक? तो ऑब्वियस है। और गुप्ता और मनीष में तो कोई कनेक्शन भी नहीं है। वो सबको लगता है सर, बहुत बड़ा कनेक्शन है। Can you, आप थोड़ा सा स्लो बात करेंगे? हम यहाँ बातें मुकम्मल कर रहे हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह, बाकला, तकलिया। तो बात ही करना बंद कर दी उन्होंने। थोड़ा स्लो अच्छा आ रहा है। हमारी खामोशी आपको बहुत सारे अल्फाज दे रही है। अल्फाज सॉरी, सेट डिजाइनर थोड़ा
देखिए कलेक्टिबल, एक और कलेक्टिबल आइटम, एक और कलेक्टिबल इसका तो आइटम। कोई कनेक्शन नहीं है। सो कमिश्नर साहब वही बैठे हुए थे। कमिश्नर साहब वहीं बैठे हुए थे। कमिश्नर साहब भी केस में फंस जाएंगे मुझे नहीं पता था, बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया केस। मुझे लगा कि आपने ही उनको डिस्गाइज करके उस समय रखा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि रेशमा इन सब केस में सस्पेक्ट थी? नहीं, ये तो नहीं कह रहा हूं मैं। सॉरी, मैं भी सीआईडी बहुत देखता हूँ। मेरे ऑडियंस ने सब पढ़ा ही हुआ है अभी तक। अच्छा, ऑडियंस बता देगा आपको मर्डर कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स डिस्कस। Let's कौन discuss. कौन सस्पेक्ट थे? बिल्कुल। एक थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के सरताज मिस्टर श्रॉफ, मिस्टर श्रॉफ, जो कि मनीष को मारना चाहते थे क्योंकि वो उनके बिजनेस में अड़ंगा दे रहा अड़ंगा डाल रहा था। था। करेक्ट। फिर थी जिनोबिया, उनकी पुत्री, जिनका मनीष के साथ चक्कर चल रहा था। बिल्कुल। तो जिनोबिया भी मार सकती है, हाँ लवर्स मारते रहते हैं। हाँ नहीं, और भी रीजंस हैं बट वो बताने की भी जरूरत नहीं है। हाँ वो, उनकी जो वाइफ थी, क्या वो सस्पेक्ट मानी जा सकती है? बिल्कुल, वाइफ तो बहुत ही बड़ी सस्पेक्ट थी। क्योंकि वो अकेली ऐसी औरत थी जिन्होंने उन मनीष के गाल कभी नहीं दबाए। करेक्ट, बट उनकी वाइफ के पीछे मैंने जुगनू को भेजा फाइनली, अच्छा, और वो गए पवई लेक के पास। उनकी वाइफ पवई लेक क्यों गई और वहां पे क्या कर रही थी और जुगनू ने उनके पीछे क्या किया, वो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अपने ऑडियंस से पूछते हैं। हाँ, उसके बाद हम ऑडियंस से पूछते हैं। हाँ। बिल्कुल सही। हाँ। करेक्ट। हाय राम, मेरा स्कार। ओ बेटा, स्कार खो गया। थैंक यू। हाय, कैसे हो आप? बस मैं तो मच्छी पकड़ रहा हूँ। पवेल में बहुत अच्छी मच्छी मिलती है। आप खाती है मच्छी? हाँ तो कैसे चल रहे हो? आप मेरे से आती हो? ऐसी बात कर रहे हो? हाँ, वही लेक का जो पानी है ना, वो बहुत गंदा है। हम बहुत अच्छा लगते हैं घर। हाँ बिल्कुल, एकदम मतलब ऐसा लगता है कि घर आ गए। पकड़ो, पकड़ो बेटा। मैं तो पकड़ा है। नहीं, ये पकड़ा है। वो नहीं पकड़ा है। नहीं, मछली पकड़ो ना, बड़ा रिलैक्सिंग लगता है ऐसे देखना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जुगनू के साथ, बहुत बेफालतू के जो कन्वर्सेशंस होते हैं ना। बात कर रहे हैं सर। सिर्फ कलेक्टर, ये वाला मेरा फेवरेट कलेक्टर आइटम में उतारूंगा नहीं। बिल्कुल इसको नहीं। बांधना थोड़ा मुश्किल है। बोलिए सर। तो ऐसा कुछ जुगनू का, बट वो स्किल भी है एक तरह से, क्योंकि कुछ आधे घंटे तक ऐसी बेफालतू की बातें कि पानी गंदा है, पानी अच्छा है, पानी गंदा है, पानी अच्छा है, ऐसे कुछ कोई कनेक्शन ही नहीं इस पूरे केस से। बिल्कुल, बिल्कुल। बट उससे उनकी बॉन्डिंग बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग के बाद अंदर की बात बाहर आई होगी। बाहर आई। आपकी आंखें ना मेरी माँ जैसी है। मेरी माँ मेरे लिए खीर बनाती थी। मैंने भी आज खीर बनाई है। क्या बात कर रही हो? सच्ची? खिलाओ। मैं आपको एक बार हक कर सकता हूँ? मैं इमोशन बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग हूँ ना मैं। तुम्हारे जैसा मेरा एक बेटा होता। क्यों नहीं हुआ? होता क्यों नहीं हुआ? बचपन में वो बेटा खेल रहा था, फिर एक दूसरा लड़का, हमारा घर जो है महालक्ष्मी रेस कोर्स के नजदीक है, वो खेलने गए। उस समय रेस कोर्स में घोड़े दौड़ा करते थे। मेरा बेटा घोड़ों को देख रहा था, घोड़े उसे देख रहे थे, दौड़ रहे थे, और ये दूसरे लड़के ने जेलसी के चक्कर में उसे धकेल दिया और घोड़ों के पैरों में पीठ। स्पेनिश में ऐसा रेस भी होता है?
ये तो बहुत ही स्ट्रांग मोटिवेशन है। आप कह रहे हैं कि मनीष ने आपके बेटे को मतलब मतलब मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये तो मैं तो सिर्फ आपकी लिखी हुई किताब को दोहरा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जुगनू को कहा कि ये तो बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन है कि आप मेरे को कह रहे हैं कि मिसेस श्रॉफ के बेटे को मनीष ने मारा, ऐसा मिसेस श्रॉफ सोचती हैं। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं उसमें। हाँ, क्या बात है? बस जुगनू का स्किल है, मेरे भाई का, मेरी बहन का लड़का है, बट स्किल्ड है ऐसा। है तो मतलब कुछ तो कनेक्शन। हाँ, कुछ तो। आप बोलते ना कि व्हाट रब्स ऑफ ऑन व्हाट। नहीं, वो मुझे पता नहीं कि दिया से बहुत दूर बाती भी नहीं गिरती है, ऐसा कुछ कहते हैं। हाँ, वैसी वैसी बात कुछ है। रबर का भी है। और ये भी कहते हैं आई लव यू, जैसा भी है मेरा भांजा है, आई लव हिम। यस, एंड लव ट्रांसेंड एवरीथिंग। द रिलेशनशिप। समथिंग ट्रांसेंड सर। व्हाट इज दिस? कैन आई यूज इट? हाँ हाँ बिल्कुल, स्पेनिश। जुगनू बात कर रहा था ना स्पेनिश स्पेनिश में, की। करेक्ट। तो आगे की कहानी आगे बढ़ाते हैं सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शट अप। आई अंडरस्टैंड। दिस इज नॉट एन इम्प्रोव शो। अब समय आ गया है कि हम ऑडियंस से पूछें कि मर्डर कौन था, बिल्कुल 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 क्योंकि सबने मेरे ब्लॉग्स तो पढ़े ही हैं। बिल्कुल। लेकिन एंड किसी ने नहीं पढ़ा। आप हर कहानी का एंड छोड़ देते ये शो में सुनाने के लिए। करेक्ट। क्या बात है, क्या बात है। सो आप सब लोग तो अब जान ही चुके हैं कि कितने सारे हमारे सस्पेक्ट्स हैं। एक तो हमारी बात हो चुकी थी बिस्किट वाले श्रॉफ भाई साहब। अब हमारी उनकी वाइफ को भी हमने देख लिया है, मिसेस श्रॉफ। ज़ेनोबिया जो उनकी बेटी है, उनका भी क्लियर कनेक्शन है, लवरशिप है ना। और मुझे बिल्कुल लगता है correct। रेशमा जी का भी इसमें कुछ ना कुछ सब। तो मैं रेशमा जी को भी सस्पेक्ट लिखूंगा अगर आप करते हैं तो। और कौन हो सकता है? पल्लू घुमाने वाली लड़की है ऑलरेडी एक अटेम्प्ट कर चुकी है। क्या बढ़िया सोच। आपका नाम क्या है? असली नाम मनीष। यस। सो पता नहीं वो पल्लू वाली लड़की को क्यों लेके आ रहे हैं बीच में। पता नहीं। गुप्ता जी। गुप्ता जी। गुप्ता जी। गुप्ता जी। कमिश्नर खुद कह सकते हैं इसका खुद। यस मैडम, आप मुस्कुरा रही हैं। Who do you think can कोई और सस्पेक्ट हो सकता है? कमिश्नर साहब के आप मुस्कुराना बंद हो गया। हाँ, यस। Yes, that guy. अब तो आप ऐसी रैंडमली चीजें बोलने जा रहे हो बस। वो तो हाँ, ऑफ कोर्स, यस। जू का हाथी वही चाहता था जू। तो आप ही आ जाइए ना, बैठ के सॉल्व करिए। हाथी नहीं सर, बिल्कुल हाथी बिल्कुल नहीं चाहता था। आपने अपने क्लियरली लिखा है हाथी लैंग्वेज में, नहीं किया तो मनीष का ब्लेजर वाला दोस्त। अदानी का भाई बहन एक्चुअली समय आ गया। ये सारे सस्पेक्ट्स तो थे, पर इनमें से किसी एक के बारे में हम बात करते हैं। नहीं, अब बताएंगे, ऑडियंस बताएगा कि किसने मर्डर किया। ऑडियंस बताइए किसने किया मर्डर? मिस्टर श्रॉफ, जुगनू, वोटिंग कर लो। ओके एक मिनट। तो मिस्टर श्रॉफ, मिसेस श्रॉफ, वोटिंग कर लो ना। कॉलेज में कैंटीन में समोसा लेके गए थे हाथी। बस ये चार लोग हैं। चार में से कौन क्या सेलेक्ट करेंगे आप लोग? हाथी ज़ेनोबिया। ओके, ज़ेनोबिया, बस पांच लोग हैं। तो बताइए इनमें से कौन हो सकता है? आई वॉन्ट cheer if you think it is हाथी। तीन लोगों ने जोर से चिल्लाया, ठीक है। जोर से cheer करिए if you think it is गुप्ता। बहुत कम लोग हैं। मिसेस श्रॉफ। मिस्टर श्रॉफ।
India. Mrs. Shroff is a murderer. Actually, Commissioner. Yes. the audience is right. Audience is of course always right. But right से थोड़ी ना हमें कुछ लेना देना है सर. आप बताइए why are they right? ऑडियंस इज राइट बिकॉज ये मर्डर किया मिसेस श्रॉफ और हाथी ने मिलके. Of course. और मोटिव बहुत सिंपल था. मनीष ने जो बिस्किट सप्लाई किए उसे हाथी का भी बेटा मर गया. So this was a revenge for a mother and a Hathi's love. And a mother and a mother. Mother and a mother, of course. Of Yeah. course. Mother and mother. ट्रिंग 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 बोलो विवेक. क्या केस सॉल्व किया तूने यार. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. प्राउड ऑफ यू. प्राउड. मेरे को प्रेशर आ रहा है. मैं अभी शौचालय जा रहा हूँ. हेलो हेलो हेलो. सर ये वाली कहानी आप अगली बार बताइएगा. कमिश्नर विवेक का मर्डर कैसे हुआ? तुम कमिश्नर विवेक के जो नए कमिश्नर थे, कमिश्नर इकबाल, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला आप ये मर्डर तो आपको सॉल्व करना है और मेरी सेफ्टी भी आपको देखनी है. मैंने कमिश्नर को बोला, कमिश्नर इकबाल, आपका मैं एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा. Thank you so much. Thank you so much. Mukul Chanda. Yogesh Upadhyay. Amit Sharma. And Avinash, Avinash Verma. thank you guys. कॉमेडी मुंबई हमारा इंस्टाग्राम पेज है. आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए. एंड यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस. आज एक स्मॉल अनाउंसमेंट. ये तीनों लोग एक मूवी में आए हैं जो अभी रिलीज होने वाली है अगले हफ्ते. कहाँ पे? March 1st को रिलीज हो रही है. डायरेक्टर यहाँ बैठा है, करण गौर. एंड द बेस्ट पार्ट इज, सिंस आप लोग इम्प्रोव के शौकीन हैं, दिस मूवी वाज मेड यूजिंग इम्प्रोव. इट्स एन इम्प्रोवाइज्ड फिल्म. सो प्लीज कम एंड वॉच इट March 1st onwards. With the theaters, it's called Fairy Folk. The exact theater schedule is not out, but it will be out. Ankit may pass it on. Yeah, it's a movie. Theaters. There'll be a. पॉपकॉर्न बहुत महंगे मिलते हैं. With judgment, movie theater. No, movie theater. It's a movie. It's a proper feature film. So please come and watch it. Support improv. Huh? Fairy folk. Just one more announcement. जब आप लोग जाएंगे आपको एक QR कोड दिखाई देगा. अगर आप चाहते हैं कि हमारे और शोज, हमारे वर्कशॉप्स और बाकी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिले, प्लीज उस QR कोड को स्कैन कीजिए. अंकित इज होल्डिंग अ वर्कशॉप स्टार्टिंग नेक्स्ट नेक्स्ट संडे. तो कुछ भी आप जानना तो मुझे बताइए. यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस. Thank you very much, guys.